حکومت میں مہنگائی معافی کا راج برقرار ہے۔ سبزیاں اور پھل سرکاری ریٹس کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ سبزیوں میں پیاز 80، ٹماٹر 80، جبکہ ادرک 430، لہسن 650، گھیا کدو 160، میتھی 80 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ پھلوں میں انار 850 سے 560، خربوزہ 450 اور امرود 270 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صوبہ دار حکومت میں مہنگائی معافی کا راج برقرار ہے۔ سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ سبزیوں میں پیاز 80 اور ٹماٹر 80، جبکہ ادرک 430، لہسن 650، گھیا کدو 160 اور میتھی 80 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں میں انار 850 سے 500، خربوزہ 450 اور امرود 270 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ صوبہ دار حکومت میں مہنگائی معافی کا راج برقرار ہے۔ سبزیاں اور پھل سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ سبزیوں میں پیاز 80، ادرک 430، لہسن 650 اور گھیا کدو 160، جبکہ میتھی 80 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں میں انار 850 سے 560، خربوزہ 450 اور امرود 270 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیں عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے تو مجموعی طور پر ایک سبزی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سبزیوں کی ریٹ لسٹ میں دیگر سبزیوں کی قیمتوں کو مستحکم رکھا گیا ہے۔ پیاز کی قیمت آج سرکاری ریٹ لسٹ میں 53 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں درجہ اول کا پیاز بدستور 70 سے 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر کی سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت 55 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر 80 روپے ہے، جبکہ مکس درجے کا ٹماٹر جو ہے 60 سے 70 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن 530 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔ مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو تک لہسن کی فروخت کی جا رہی ہے۔ ادرک 290 کے برعکس 420 سے 430 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آلو 20 روپے فی کلو سرکاری نقصنامے میں ہے۔ مارکیٹ میں درجہ اول کا آلو 20 روپے، جبکہ مکس درجے کا آلو جو ہے 30 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پالک 30 کے برعکس 60 روپے، بند گوبھی 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پھول گوبھی کی سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت 35 روپے ہے، تاہم مارکیٹ میں پھول گوبھی درجہ اول 60 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بیگن 80 کے برعکس 150 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں، اور بھنڈی کی قیمت میں آج 10 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 215 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں بھنڈی جو ہے 320 سے 340 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی سرکاری ریٹ لسٹ میں تمام پھل جو ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، جس میں سیب کالا کولو پہاڑی 420 روپے مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں سیب کالا کولو 560 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح میدانی سیب جو ہے 275 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں ہے۔ مارکیٹ میں 360 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 230 روپے فی درجن سرکاری ریٹ لسٹ میں اس کے نرخ مقرر کیے گئے ہیں، تاہم مارکیٹ میں درجہ اول کا کیلا 260 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ امرود 145 کے برعکس 270 سے 280 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور پپیتا 340 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں سرکاری نقصناموں کے برعکس مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور پولیس افطاریوں میں مصروف ڈاکوؤں کی عیدی مہم عروج پر ہے۔ شہر میں رمضان کے پہلے عشرے میں ہی جرائم کا گراف اوپر رہا۔ نجی سوسائٹی میں لوٹ مار، ڈاکوؤں نے خاتون خانہ کو گھر سے باہر لا کر گولیاں مار دیں۔ رپورٹ کریں گے مجاہد لطیف۔ لاہور میں ڈاکوؤں کو پولیس کا فری ہینڈ، رمضان کے آغاز میں ہی اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ۔ مناوا کی نجی سوسائٹی کے اندر ڈکیتی کی لرزہ خیز واردات، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور نقدی اور طلائی زیورات لوٹ لیے۔ دیدہ درے ڈاکو مزاحمت پر خاتون خانہ نادیہ بی بی کو گھر سے باہر لے آئے اور گولیاں مار دیں۔ 2 گولیاں لگنے سے خاتون شدید زخمی ہو گئی، جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چند روز قبل لٹن روڈ کے علاقے میں نجی فاسٹ فوڈ فرنچائز لوٹ لی گئی۔ لوئر مال میں بھی ڈکیتی کی واردات رپورٹ ہوئی، جبکہ نواں کوٹ میں شہری ڈاکوؤں کے نشانے پر آ گئے۔ شینا کوٹ میں موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے شہری کو زخمی کر دیا اور کروڑوں روپے چھین لیے گئے۔ شہر میں جرائم کی بڑھتی وارداتوں سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس سے پولیس کی کارکردگی پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ اور ناصر، پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر خار پچاڑ کا سلسلہ جاری ہے۔
एडिशनल आईजी समेत 30 आला पुलिस अफसरान के तबादले हुए हैं, जिनमें महबूब असलम डीआईजी एलीट लाहौर और फैसल अली राजा डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर तैनात हुए हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल को कमांडेंट चौकी लगा दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आईजी पंजाब का बड़ा इंतजामी फैसला, 30 आला पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुरम शकूर को एडिशनल आईजी ट्रेनिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। उस्मान अकरम गोंदल को आरपीओ मुल्तान का चार्ज सौंप दिया गया। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल चूंग तैनात, जबकि महबूब असलम को डीआईजी एलीट फोर्स लाहौर लगा दिया गया। फैसल अली राजा को डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर और कामरान आदिल को डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। दूसरी जानिब मोहम्मद तारिक अजीज एसएसपी स्पेशल ब्रांच लाहौर, जबकि आयशा बट एसपी हेडक्वार्टर एलीट फोर्स तैनात, वसीम अख्तर को गुजरांवाला का सीटीओ और कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार को एसएसपी पेट्रोलिंग लगा दिया गया। दोस्त मोहम्मद को सियालकोट, डॉक्टर असद इजाज मलही को उकाड़ा का डीपीओ लगा दिया गया। सजाद हुसैन कोकर डीपीओ झंग, एसपी ऑपरेशन स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस विंग में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में ई मार्किंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। रवां साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 या 2 पेपर्स की ई मार्किंग की जाएगी। ई मार्किंग के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त फराहम किया गया है। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को ई मार्किंग पर अमल दरामद का पाबंद बना दिया। रवां साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 या 2 पेपर्स की ई मार्किंग की जाएगी। ई मार्किंग के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त फराहम किया गया है। चेयरमैन IBCC डॉक्टर गुलाम अली का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद तमाम पर्चों की मार्किंग ई मार्किंग सिस्टम के तहत की जाएगी। इस इकदाम से नताज में शफाफियत, रफ्तार और दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जा सकेगा। पंजाब में रवां साल कंप्यूटर साइंस के पर्चों की ई मार्किंग को हतमी शक्ल दे दी गई। हुकाम का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसानी गलतियों में कमी आएगी। तलबा को बर वक्त और मुनसिफाना नताज फराहम किए जा सकेंगे। IBCC हुकाम का कहना है कि हम शफाफ और तेज रफ्तार रिजल्ट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई मार्किंग तालीमी निज़ाम में एक अहम संग मील साबित होगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। महकमा स्कूल एजुकेशन के जारी करदा नए ड्रेस कोड पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उस्तादिज़ा के लिए दौरान तदरीस गाउन पहनना लाजमी करार दिया गया है। इक़दाम से तालीमी इदारों में नज़्म ज़ब्त और पेशा वक़ार को फ़रोग़ मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब क्लासरूम्स में गाउन पहनकर तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ताहम मुख्तलिफ अज़ला में अमल दरामद की सूरत हाल यकसा नहीं। कुछ स्कूलों में मुकम्मल तौर पर गाउन पहनने का आगाज हो चुका है, जबकि बाज़ इदारों में असातिज़ा को गाउन दस्तयाब न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा का कहना है कि ड्रेस कोड और ब्लैक गाउन एक मस्बत इकदाम है, लेकिन असातिज़ा को हकीकी मायनों में इज्जत, बेहतर सहूलियात और पेशा वाराना तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जो असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड है ना, उसके अंदर गाउन शामिल है और वो असातिज़ा के लिए इज़्ज़त और वक़ार की निशानी है। असातिज़ा पहनते हैं, जब बाहर निकलते हैं पूरे महकमे जो है उनको जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसके साथ साथ जो है वो अमली इक़दामात भी किए जाएँ, जिससे असातिज़ा की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हो और असातिज़ा के लिए फ़ाइनेंशियल इक़दामात भी ऐसे किए जाएँ जिससे वो फाइनेंशियली फ्री होकर माइंड से जो है बच्चों को पढ़ा सके। दूसरी जानिब गाउन की अचानक तलब बढ़ने से मार्केट में किल्लत पैदा हो गई है। गाउन की कीमत में इजाफा होने से असातिज़ा को अज़ाफ़ी माली बोझ उठाना पड़ रहा है। ब्लैक गाउन असातिज़ा की तदरीसी शनाख्त का हिस्सा बन गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से क्लासरूम में संजीदगी और डिसिप्लिन को फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ पर दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। मौसर इक़दाम के बावजूद गिरा फरोशी पर काबू पाने की मंजिल दूर दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया के मुताबिक मुकाबले में गिरा फरोशों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश के नरखों में इजाफा एक ऐसी रवायत बन चुकी है जिस पर हर साल पूरी शदोमत के साथ अमल किया जाता है। यही सूरत हाल रवा माह रमजान के दौरान भी देखने में आ रही है। दालें, सब्जियां, फल और दीगर अशिया की सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त ने शहरियों का सुकून बर्बाद कर रखा है। चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। अब इस चीज़ को देखे ना, मरीम नवाज साहिबा ने कहा था ना महंगाई को कंट्रोल करना है, तो काइंडली उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कंट्रोल करें इस चीज़ को। ठीक है ना, गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा इस चीज़ के लिए। रोज़ेदार हैं, लेकिन रोज़ा तो रखना है, लेकिन अफोर्ड वो कहाँ से करेंगे इस चीज़ को। फ्रूट की कीमत जो है ना
वो तकरीबन आसमानों में चला गया। अब इस वक्त हम भी आए थे फ्रूट चाट के लिए, कोई सेब ले ले, कोई केला ले ले, अभी तक नहीं लिए। मैं वही सेब का रेट पुछदा पिया, 250, 300, 350, 400 तो घट कोई सेब है ही नहीं। ਹੁਣ मैं वही देखता पिया सा कोई सस्ता लभ जाए। बाहर के हम मालिकों में जब माह रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये रेट बढ़ा देते हैं। सारिफीन की ये शिकायत बेजा नहीं है कि दालों की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो दाल मूंग 345 रुपए के सरकारी निरखों के बरक्स 450 और सफेद चने 280 रुपए के बरक्स 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। फलों की बात की जाए तो सेब काला कोलू पहाड़ी सरकारी कीमत 420 रुपए किलो मुकर्रर, लेकिन फरोख्त ये 560 रुपए किलो तक हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 230 रुपए के बरक्स 300 रुपए दर्जन तक मिल रहा है। हमारे वहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का बड़ा रोल है, इसमें पीरा फोर्स का बड़ा रोल है। एक दिन की हमारी मोर देन 5500 इंस्पेक्शंस हैं, 1.3 मिलियन का फाइन है, मोर देन 30 हमारी सील की हैं, हमने FIR'ें दी हैं, अरेस्ट किए हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ाना की एक्टिविटी है। तो हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को देखें, लोगों को रिलीफ दें। किस्सा मुख्तसर ये कि जो चाल बेढंगी सी पहले थी सो अब भी है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ अशिया के निरखों में इजाफा अब हमारे यहाँ एक ऐसी रवायत बन चुका है कि जिस पर इस साल भी पूरी शदोमत के साथ अमल किया जा रहा है। और बज़ाहिर तो यही लगता है कि मुस्तकबिल में भी हालात के सुधरने का कोई ज़्यादा इम्कान नहीं है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, माह मुक़द्दस के दौरान फेवनियों की तैयारी में तेज़ी, बाज़ारों में मीठे पकवानों की तलब बढ़ने के साथ फेवनियों की खरीदारी भी अरूज पर है। शहरी अफ्तारी के लिए भी अज़ीज़ व अक़ारिब को ये तोहफ़ा बेच रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में मीठे पकवानों की तलब बढ़ गई। दुकानदार ईद के लिए खुसूसी तौर पर फ्यूनियों के एडवांस ऑर्डर मुकम्मल करने में मसरूफ़। शहरी न सिर्फ सहरी और अफ्तारी बल्कि ईद के मौके पर मीठे पकवान का तोहफा रिश्तेदारों को देने के लिए भी फ्यूनियाँ खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है फ्यूनियों की तैयारी में मैदा और घी, इलायची और खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में 1 किलो फ्यूनियाँ 500 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। सहर और अफ्तार में हर कोई शौक से फ्यूनियों का इस्तेमाल करता है। ईद के लिए मीठे के तौर पर भी फ्यूनियों का तोहफा भिजवाया जाता है। ईद वाले दिन हम अपनी बेटियों को ईद देने जाते हैं, हम लेके जाते हैं और हर घर की ये जीनत है, घर वाले लेके जाते हैं, गाय बगाए, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। ईद आ रही है, ईद बच्चियों को देनी है, दोस्तों को देनी है, हम इसलिए इधर आए हैं। ये बहुत मज़ेदार होती हैं, लोग सहरी में अफ्तारी में छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं। फ्यूनियाँ यानी जो है ना ये सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ये दूध में डाल के और खाई जाती हैं सुबह, ताकि सहरी के वक्त भी जिस्म जो है वो तवाना रहे। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ान के दौरान फ्यूनियों की मांग में इजाफा हो जाता है। रमज़ान में तैयार होती हैं और काफ़ी ज़्यादा तैयार होती हैं डेली बेस में। ये 500 रुपये केजी होती हैं, ठीक है। और ये लोग ईद में तोहफा तोहफ़ देते हैं अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को ईदी देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और लजीजा होती हैं। रोज़ाना तकरीबन कोई 300-400 किलो तैयार हो जाती है। ग़ज़ाई माहिरीन का कहना है फ्यूनियाँ फौरी तवानाई का ज़रिया तो हैं, लेकिन ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बारीक साख और खस्तापन के बाइस फ्यूनियाँ न सिर्फ खाने में मज़ेदार होती हैं बल्कि अफ्तारी और ईद की महफिलों का लाजमी हिस्सा भी समझी जाती हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।